नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान एड्यू में। और आज हम ये तीसरे पार्ट में देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 1947। शुरू करते हैं इस वीडियो को द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दिस एक्ट वाज बेस्ड ऑन अ वाइट पेपर ऑफ 1932 prepared by the British government on the basis of deliberation of three round table conference on the Indian problems. There was no preamble. अभी वाइट पेपर ऑफ 1932 थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस है, हम वीडियो में आगे देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसके फीचर्स। इट मेड द प्रोविजन फॉर ऑल इंडियन फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ 11 ब्रिटिश प्रोविंस, 6 chief commissioners areas, and those princely states which desired to be a part of a federation. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के साथ जो डायरकी सिस्टम लागू हुआ था, उसी को 1935 के एक्ट से अबॉलिश कर दिया गया। It abolished the diarchy system in the province and introduced provincial autonomy. The diarchy system was transferred from province to center. With this act, the Reserve Bank of India was established. And जो अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट, उसका जो 70% कंटेंट है वो इसी एक्ट से लिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. The act also provide for public service commission for federal government and one for each province. With this act, a federal court was established, Indian Council was abolished, and Burma, that is Myanmar, was separated from India. अब ये थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है? टेबल कॉन्फ्रेंस ये चली थी 1930 से 1932 इन इंडियन हिस्ट्री, अ सीरीज of a meeting in three sessions called by the British government to consider the future constitution of India. The conference resulted from a review of the Government of India Act 1919 undertaken in 1927 by the Simon Commission, whose report was published in the 1930. मतलब बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई थी, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है उसके लिए, तो उसके रिव्यू और उसके प्रॉब्लम्स और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए उसके रिगार्डिंग ये सारी कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये थ्री राउंड में हुई थी, तीन सेशन में हुई थी। First round of conference and second round of conference, third round of conference. The first round table conference ये हुई थी नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच। Neither Indian National Congress nor any prominent political or business leader from India participated in it because most of them were lodged into the jail. Second round of conference was held between the September and December 1931. इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, महात्मा गांधी वॉज अपॉइंटेड एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन देयर वाज थर्ड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हुई थी लंदन में ऑन नवंबर 17 1932। दिस वाज अ नॉमिनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस रिफ्यूज टू अटेंड इट एंड इवन इन ब्रिटेन द लेबर पार्टी रिफ्यूज टू अटेंड इट, so only 46 people reach out there. The key outcome of the third round table conference was the white paper issued by the British government. On the basis of this paper, the Government of India Act 1935 was to be passed. अब इसी कॉन्फ्रेंस में कॉलेज स्टूडेंट थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली. He proposed the name of a new land especially carved out from the India for the Muslims. The name was Pakistan. Muslim leaders who attended the conference was Muhammad Ali, Aga Khan, Fazlul Haq and Jinnah. अब ये जो white paper है ये क्या है? A white paper are a policy document produced by the government that are set out their proposal for the future legislation. White paper are often published as command paper and may include a draft version of a bill that is being planned. In 1942, there was Cripps Mission. It was named after the head of the mission, Sir Stafford Cripps. It came to India to get support from the Indians during World War II.
It also proposed to give the dominion status to India and establishment of Constituent Assembly. Then after there was Cabinet Mission Plan 1946. The Cabinet Mission Plan was composed of three cabinet ministers of England. First, Patrick Lawrence, Secretary of State for India. Second, Stafford Cripps, President of the Board of Trade. And third, the A.V. Alexander, the First Lord of the Admiralty. कैबिनेट मिशन था वो क्यों बनाया गया था? वो इसलिए बनाया गया था कि दैट दिस कमीशन एम टू डिस्कस एंड प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन लीडरशिप प्रोवाइडिंग इंडिया विद इंडिपेंडेंस। यानी प्लान को डिस्कस करना था कि किस तरीके से जो पावर है ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर वो इंडियन लीडरशिप में देनी है एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। It formulated at the initiative of the Prime Minister of UK Clement Attlee. It proposed the election to be conducted for the Constituent Assembly. An elected Constituent Assembly framed the Constitution. The Cabinet Mission recommended an undivided India and turned down the Muslim League demand for the separate Pakistan. अब यहाँ क्या हुआ, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे क्लेमेंट एटली, इन्होंने प्रपोज किया कि एक इलेक्शन करवा दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वही रिस्पॉन्सिबल होगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बट यहाँ पर जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उनकी जो डिमांड थी एक अलग डोमिनियन स्टेट बनाने की जो था पाकिस्तान, वो कैबिनेट मिशन ने खारिज कर दी। टर्न डाउन द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द सेपरेट पाकिस्तान। जो मोहम्मद रहमत अली थे जिन्होंने नाम प्रपोज किया था पाकिस्तान, ये कैबिनेट मिशन प्लान ने रिकमेंड नहीं किया, मुस्लिम लीग की डिमांड को खारिज कर दिया। अब आफ्टर दैट देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। 1935 के बाद आया 1947। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, फरवरी 20 1947 को इन्होंने डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 1948। इसके बाद जो पावर थी वो सारे रिस्पॉन्सिबल इंडियंस थे उनके हाथ में दे दी जाएगी। दिस अनाउंसमेंट was followed by the agitation by the Muslim League demanding the partition of the country। अब इस डिसीजन से मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिए, डिमांड की पार्टीशन ऑफ द कंट्री। वो हालांकि पहले भी कर ही रहे थे, बट यहाँ पर उन्होंने एजिटेशन, वायलेंस शुरू कर दिया। एंड अगेन ऑन जून 3 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन framed by the Constituent Assembly for India, which was formed in the 1946 itself, वो अप्लाई नहीं करेगा, कैन नॉट बी अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। अब ये अनाउंस कर दिया। अब जो पाकिस्तान, लाहौर, ये उस साइड का एरिया था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वहीं मुस्लिम लीग डिमांड कर रही थी कि वो एरिया पाकिस्तान डोमेन बनना चाहिए, और ईस्ट में जो बांग्लादेश है प्रेजेंटली, वो ये दो एरिया को नया स्टेट, एक नया डोमिनियन ऑफ स्टेट बना दिया जाए, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। ये मुस्लिम लीग की डिमांड थी। On the same day of 3rd June 1947, Lord Mountbatten, the Viceroy of India, put forth the partition plan known as the Mountbatten Plan. This plan was accepted by the Congress and the Muslim League. अब यहाँ क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, उन्होंने एक प्लान दिया पार्टीशन का। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के नाम से उसे जाना जाता है। अब हालांकि पार्टीशन इन्होंने ही करवाया है। अब ये प्लान जो था ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर इसके फीचर क्या थे जो इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के ये थे कि इस एक्ट से दो डोमिनियन स्टेट बनाए जाने थे, कि इंडिया और पाकिस्तान, जो अगस्त 15 1947 से एग्जिस्टेंस में आ गए थे। फिर था द बाउंड्री बिटवीन द टू डोमिनियन स्टेट वर टू बी डिटरमाइंड बाय द बाउंड्री कमीशंस हेडेड बाय द सर सिरिल रेडक्लिफ। ये बाउंड्री कमीशन बैठाई गई थी, सर सिरिल रेडक्लिफ जो उससे हेड कर रहे थे,
इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर डिफाइन की। हालांकि जो अभी जो बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान की, उन्हें इन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ के नाम से ही जाना जाता है। हमें उसे रेड क्लिफ बॉर्डर भी कहा जाता है उसे। Both the states shall have the right to frame their constitution by their respective constituent assemblies. With this law, the British Crown shall cease to be the ruler of India, and the members of the civil services appointed before the 15 August 1947 will continue to remain in service and to enjoy all the benefits which they were entitled to avail. तो ये कहानी थी अब तक की जो हमारी इंडिपेंडेंस 1947, जो 15 अगस्त 1947 तक की थी। अब हम जानेंगे द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे हम फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से आएंगे, द फैक्ट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम आर्टिकल्स पे जाएंगे। धीरे धीरे करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे और उसके बारे में नई चीज़ें भी जानेंगे। अपडेट जो मिलेंगे नए प्रेजेंटली, उसके बारे में भी जानेंगे। That's all in this video. Stay updated, stay connected with Samvidhan Edu. Please like, share and subscribe. This is the third part of the background regarding the constitutional history. 3 पार्ट हैं इसके। पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड को मैंने शॉर्ट एंड क्रिप्स में ख़त्म किया है। जो मेन पॉइंट्स मुझे लगे मैंने इस वीडियो में डाले हैं। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट छूट गया है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे भी नेक्स्ट वीडियो में समझाने का पूरी कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।